Quantum, how it started? It started as India's first institutional equity research firm. Stocks with less than 1% weight, 85, 50, 64, 97, 71. अगर फंड मैनेजर 1% वेट भी नहीं रख रहा है पोर्टफोलियो में, उसे आधा टका लग रहा है, वो स्टॉक डबल भी होगा तो कितना रिटर्न देगा? ग्लोबल नैरेटिव्स हमने बहुत देखे हैं। ओवर टाइम ये वॉर्स, जियोपॉलिटिक्स ये हमेशा रहा है। दिस इज अ टाइम यू कैन मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम इंडियन एक्विटीज if you have a 2-year, 3-year view from markets. Good morning, everyone. Thank you, Anup ji, for inviting us today. And I see a lot of young people here. It's great to see what he's building. I think the future of industry, future of mutual funds is here in front of me. So I think it's a privilege to be here and addressing to you all. एक चीज़ जो हम आज बात करेंगे, आई थिंक यू वुड हैव नेवर सीन फ्रॉम एनी फंड मैनेजर इन इंडिया सो फार. So we will come to those things in a bit, but how many of you all know quantum? Anyone knows quantum? Okay. How many of you all are investor in quantum? Wonderful. I think I should be able to convince all of you, all the hands which are not up, maybe to invest with us as we go ahead. So, investment किनको लगता है कि एक one person can do it and किसको लगता है कि a team should do it? Anyone for team? Okay, and rest of the people I think understand that एक person का काम है, उनको ही करना चाहिए, right? और वो जो एक बंदा या मैन और वुमेन हु इज मैनेजिंग इट, अगर उनको कुछ हो गया तो क्या होगा आपके इन्वेस्टमेंट्स का? गॉन फॉर अ टॉस. सो इंडिया में आई थिंक इन्वेस्टमेंट में टीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और अब तक इंडिया में एक जोड़ी जो मानी जाती थी विच इज सुपीरियर फ्रॉम ऑल एंड द लॉन्गेस्ट रनिंग पार्टनरशिप इन इन्वेस्टमेंट वॉज, एनी गेसेस? Was Warren Buffett and Charlie Munger. This was the longest running investment partnership in the world. उसके बाद इंडिया में ऐसी कोई पार्टनरशिप है? आपने, are you aware? Is there any other partnership in India, investment partnership, that has lasted for years? No? This is the longest partnership that we have in India. Ajit Dayal and I.V. Subramaniam. They both started in 1996 to manage money together as an investment team. I joined them in 2006. So it's been about 30 years of investment partnership. And even today, now Charlie Munger is unfortunately no longer there. Warren Buffett is retired. So now, these two gentlemen are the longest running investment partnership even today. Nowhere in the world it is. So, Ajit was the founder of Quantum in 1990. Subbu joined Quantum in 1996. क्वांटम को आप इसलिए नहीं जानते थे बिकॉज यू नो वी वर गुड एट वॉट वी डिड, दैट इज इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वी आर एन इन्वेस्टमेंट फर्म. बट देयर वॉज नो वन हु कुड हेल्प अस रीच यू ऑल ओवर लास्ट 20 years. शायद हम और मैं अनूप जी से शायद पहली बार मिला हूँ, राइट? माई कलीग्स हैव मेट अनूप जी, बट आई हैव मेट अनूप जी पर्सनली फॉर द फर्स्ट टाइम. So that tells you that, you know, we were good at what we did, which was investments, but not reaching out. And that is why not many of you all know us. But here we are. So there's enough being talked about me, so I will skip that. So Quantum, how it started? It started as India's first institutional equity research firm. 1990 में. 1990 में आपको लगता है किसी को equity research मालूम था इंडिया में? किसी को नहीं मालूम था. और जब हम रिपोर्ट बनाते थे और लोगों को दिखाते थे तो ये क्या है,
This is not what we want to do. हम तो stock market के prices देखते हैं. I think that time the physical report used to get print in Yes. 1992. Stock market yearbook. हाँ. जब भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, आपको रद्दी वाले के पास जाना पड़ता था एनुअल रिपोर्ट लेने के लिए कंपनीज के, और फिर वो एनुअल रिपोर्ट्स को आप देख के एनालाइज करके कुछ समझते थे कंपनी के बारे में. राइट. एट दैट टाइम वी यूज्ड टू प्रिंट अ स्टॉक मार्केट ईयर बुक. कंपनीज के सारे फाइनेंशियल्स एक साथ एक बुक में, सारी कंपनीज के. दिस इज व्हाट वी डिड. दैट्स आवर लेगेसी. इंडिया में जब भी FIIs चालू हुए आने का, 1992 में सेबी अलाउड FIIs टू कम इनटू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. और जो फर्स्ट FII इंडिया में आया था वो फर्म का नाम था जार्डिन फ्लेमिंग. यूके की कंपनी थी, एंड क्वांटम हैड अ जॉइंट वेंचर विद दैट फर्म. इट वाज कॉल्ड जार्डिन फ्लेमिंग क्वांटम. So we were very successful at that time as an investment firm. We were managing $2 billion in 1992 to 95. वो पार्टनरशिप एथिकल रीजन से हमें तोड़नी पड़ी, बिकॉज यू नो जब भी दूसरे दूसरे डिविजन्स, जो बिजनेस डिविजन्स होते हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है. दैट इज़ द टाइम वी थॉट दैट ये कॉन्फ्लिक्ट इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे नहीं है. इसलिए हमने सक्सेसफुल थे, हम अच्छा कमा रहे थे, but we said it is not good for investors, and that is why we broke that partnership. And over time we have managed money for many global institutions investing in India. So आज भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा sovereign wealth fund जो है, उनके लिए हम मैनेज करते हैं इंडिया में पैसे. Right? So we have been very strong on the global side of money management. जो भी FIIs इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, कैनेडियन पेंशन प्लान्स हो गए, US की यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट्स हो गए, यूरोपियन पेंशन हो गए, उनके लिए हम मैनेज करते आए हैं पैसे इंडियन इक्विटी मार्केट्स में. सो दिस हैज़ बीन आवर जर्नी ऑन द इंटरनेशनल साइड. 2006 में हमने क्वांटम म्यूचुअल फंड्स शुरू किया. वी लॉन्च्ड मेनी यूनिक फंड्स ओवर टाइम, एंड वी विल कम टू दैट यूनिकनेस इन सम टाइम. बट वी आर a very differentiated firm from a ownership perspective. 49% of in quantum is held by Fairfax. Fairfax किसको मालूम है? किसी को थॉमस कुक मालूम है? राइट. तो थॉमस कुक को जो ओन करते हैं वो फेयरफैक्स है. उनके काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में. वो कनेडियन इंश्योरेंस फर्म है, और प्रेम वत्सा जो उनके फाउंडर है, उन्हें कहा जाता है कि वॉरेन बफे ऑफ कनाडा. So we are owned to some extent 49% by them. So quantum में, just to give you a glimpse, there is a process driven approach. तो आज मैं कोई फंड मैनेज करता हूँ, मुझे कुछ हो गया तो आपके इन्वेस्टमेंट्स में कोई असर नहीं पड़ेगा. There will be no difference to your investments, because there is a team that manages, not me alone who manages. जो मुझे जितना मालूम है, मेरे कलीग्स को उतना ही मालूम है वो फंड के बारे में, so that there is continuity to your investments. We have total experience in the research and investment team of 201 years in total. अगर सबके experience जोड़ ले तो there is a 201 years of experience in the team. I have been with Quantum since inception, since 2006. We have one of the largest research and investment team in the country. Mutual fund क्या है? Investments manage करता है. उसका what is the core engine? Is the research and investment team, right? So we have the largest research and investment team in the country, and we were built as India's investor first. So whatever we do, no matter if it compromises even our fees, we will do what is right for the investors. So this is our suite of products. 20 साल में only 14 funds. सेबी हमें क्या लाइसेंस देता है? Asset management company, right? We are not a asset gathering company. So जो हमें आता है, जो इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, वही लॉन्च करेंगे. So this is the team that I was talking about. These are the fund managers that we have. Christy, George, Abhilasha, Ketan, Rajorshi, Piyush, Mansi. So these are all the fund managers that you will see.
सो इससे रिलेशन क्या है? वॉट आर वी ट्राइंग टू डू हियर? आप जब भी कोई फंड मैनेजर को चूज करते हो, राइट, व्हेन यू चूज अ फंड मैनेजर, आप क्या देखते हो? एनीवन? ट्रैक रिकॉर्ड। सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड? पिछला 3 साल अच्छा है तो इसमें अच्छा आएगा, मगर वो 3 साल तो पीक हो गया उसका परफॉर्मेंस, फिर नीचे आएगा। कंसिस्टेंसी। तो आप पहले तो देखते हो कि कौन लोग हैं, क्या एक्सपीरियंस है इनका, क्या हमारे पैसे सही संभाल पाएंगे कि नहीं, राइट? दैट इज़ व्हाट यू सी फर्स्ट। सेकेंड इज़ उनका क्या प्रोसेस है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ ऐसा डार्ट फेंक के स्टॉक सिलेक्ट करते हैं कि कुछ समझते हैं कंपनी के बारे में और फिर इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड देखते हैं कि उनकी फ़िलॉसफी क्या है, कि बुल मार्केट में सिर्फ अच्छा करना है, बेयर मार्केट में भी अच्छा करना है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, राइट? ये सब समझ के आपको लगता है कि उनका, और बाद में देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है। हमें लगता है कि ये जो आप 4 चीज़ देखते हैं और परफॉर्मेंस देखते हैं, इट हैज़ टू गो 1 स्टेप अहेड। इट हैज़ टू गो टू अ लेवल दैट यू कैन से कि आज मार्केट ऐसा कर रहा है ना, तो मेरा फंड मैनेजर ऐसा करता होगा, कि उनका परफॉर्मेंस ऐसा होगा। उसे हम बोलते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मार्केट देखने से आता है, या तो फिर आपको कन्विक्शन हो कि ये फंड मैनेजर जो बोल रहा है वो सही होगा। और बहुत लोग आपको आके बोलते हैं कि ईरान में ये हो जाएगा तो मार्केट्स ऐसा होगा, ऑयल ऊपर जाएगा तो मार्केट्स नीचे आएंगे, अगर इंडिया में ये पार्टी जीतती है तो मार्केट्स ऐसे रहेंगे। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, राइट? इकोनॉमिक्स की जैसे बात करते हैं फंड मैनेजर्स, इकोनॉमिक्स कभी भी एक हाथ से बात नहीं करते हैं, 2 हाथ से बात करते हैं। ऑन वन हैंड इज, अदर हैंड इज दिस। क्लैरिटी व्यू नहीं होता है। आपको चाहिए क्लैरिटी, तभी आप इन्वेस्टर्स के पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे, राइट? तो क्लैरिटी कैसे आए, ये प्रिडिक्टेबल आउटकम कैसे आए? क्या आप स्क्रीन पे 2 लाइन देख रहे हैं? यू सी 2 लाइन्स, both are moving together. मोस्टली 2 बार डिसलोकेशन देख रहे हैं आप, जो मार्क किया हुआ है, उसके अलावा तो दोनों साथ में चल रहे हैं। एक लाइन है जो ब्लू लाइन है, हमने जब भी अपना फंड चालू किया था 2006 में, उसका एनएवी है, और उसका एनएवी आप चार्ट करेंगे तो ये एनएवी है, जो अगर 100 रुपये से चालू हुआ होता तो आज 1600 रुपये है। और ऑरेंज लाइन क्या है, जो हमने प्रेडिक्ट किया कि हमारा 2 साल के बाद एनएवी क्या होगा। दोनों लाइन साथ में चल रहे हैं ऑलमोस्ट। जो हमने कहा कि हमारा एनएवी क्या होगा और हमारा जो एक्चुअल एनएवी है, वो दोनों साथ में चल रहे हैं। और अगर हम 2 साल आगे का प्रेडिक्ट करते हैं, इसलिए ऑरेंज लाइन 2 साल के बाद चालू हो रहा है। 2 डिसलोकेशन, बड़े डिसलोकेशन आए हैं, बट अदरवाइज बोथ हैव गॉन टुगेदर। तो ये कैसे होता है? हाउ डू वी नो कि हमारा एनएवी क्या होगा, और उसके आसपास ही हमारा एनएवी कैसे आता है? सो अगर ये वही 2 लाइन है, मगर उसके बैकड्रॉप में हमने काफ़ी सारे शेड किए हैं। पहले बात करते हैं जब ये मिस हुआ, क्यों मिस हुआ, तो आप समझ पाएंगे कि हाउ इट हैपेंस। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, यूएस का फाइनेंशियल क्राइसिस था, यूएस का होम मॉर्गेज क्राइसिस था। इंडिया क्या लेना देना था उनके साथ? वॉज देयर एनी रिलेशनशिप वो क्राइसिस और इंडिया में? फिर भी हमारा मार्केट 52% डाउन था। क्यों? बिकॉज FIIs पैसा बाहर लेके जा रहे थे, उनके मार्केट में क्राइसिस था, उनको पैसे की जरूरत थी, वो पैसे लेके जा रहे थे, तो मार्केट वॉज डाउन 52%। मगर इफ यू सी, जैसे वो खत्म हुआ, मार्केट अगेन केम बैक टू वेयर द प्रेडिक्शन वाज। सेकेंड डिसलोकेशन कोविड 2020, ऑफ कोर्स वो उसमें हमारा यहाँ पे भी क्राइसिस था। हालांकि बिफोर मूविंग देयर, 2008 में, नवंबर 2008, जब वर्ल्ड लीडर्स
मिल रहे थे डावोस में और एग्जॉटिक प्लेसेस में कि कैसे वर्ल्ड को बचाया जाए, हमने कहा कि इंडियन मार्केट, हमारा पोर्टफोलियो आपको 170% रिटर्न देगा। कितना? 170%। और एनी गेसेस हमने कितना दिया होगा? 190%। फेयरली एक्यूरेट। नवंबर 2008 में कोई आके बोलता आपको कि आपको 170% मिला होता तो आप तो उस पर हंसते, राइट? कि क्या बात कर रहे हो, इतना मार्केट में इतना प्रॉब्लम है, इतना इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। पर इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं था। सो अगर आप फंडामेंटल्स देखते तो आपको वो मार्केट अट्रैक्टिव लगता। 2020 कोविड था, हम भी डरे हुए थे, बिकॉज क्या होगा, नो वन न्यू, राइट? वी वर एट होम, नॉट इवन इन आवर ऑफिस। जूम कॉल पे टीम्स डिस्कस कर रही हैं। स्ट्रेस टेस्ट किया, उसके बाद हमारा प्रेडिक्शन आया कि हमारे पोर्टफोलियो में निकलेगा 75% रिटर्न इन 2 ईयर्स। मार्च 2020 में, मार्च 2020 में किसने पैसे डाले मार्केट में? ओनली 1, 2, 3, 4, maybe out of so many people, कंसिस्टेंट है आप लोग। 80% में भी 4 लोग आते हैं, मार्केट में पैसे डालने वाले भी 4 लोग आते हैं। सो और हमने कितना रिटर्न दिया? 75 प्रेडिक्ट किया और 90%, बिकॉज मार्केट्स वो काइंड, वो बाउंस बैक काफ़ी ज़्यादा आया। पर हमने स्ट्रेस टेस्ट किया था कि अगर लॉकडाउन रहता है, लंबे समय तक थोड़ा चलता है, तो कंपनीज के अर्निंग्स में क्या इम्पैक्ट आएगा। दैट कैन ओनली हैपन इफ़ यू नो योर कंपनीज वेल। सो हमने स्ट्रेस टेस्ट करके थोड़ा चीज़ बेच भी दिया तभी, कि जिसमें हमने रिस्क लग रहा था हमने बेच भी दिया, मगर किसमें इन्वेस्ट भी किया क्योंकि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन था। एंड वी मेड 90% रिटर्न फॉर आवर इन्वेस्टर्स 2 years आउट। इज दिस हेल्पफुल टू यू? अगर आप मुझे कभी भी पूछे कि अगले 2 साल का रिटर्न क्या होगा, अगर मैं बता पाऊँ और अगर आपको उस पर कन्विक्शन आता है, तो इज दैट हेल्पफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू? एब्सोल्युटली, स्पेशली ऐसे टाइम पे, राइट? और आप मुझ पे विश्वास क्यों करेंगे? क्योंकि मेरे पास 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है बताने के लिए कि हमने क्या प्रेडिक्ट किया एंड व्हाट वी डिलीवर्ड। हैव यू मीट एनी फंड मैनेजर और हर्ड फ्रॉम एनी फंड मैनेजर कि क्या उन्होंने प्रेडिक्ट किया था और क्या रिटर्न्स आए पोर्टफोलियो के? एनीवन? नो वन। So this is unique thing that we bring. Internationally we can write to investors कि अगले 2 साल में क्या रिटर्न निकलेंगे, and we write every month. Every month we tell investors कि हमारे पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न निकलेगा। सेबी यहाँ अलाउ नहीं करता है, so we cannot tell it to you. But when we say to tell you what we have designed is this backdrop, जो कलर्स है उसके हिसाब से आपको इंडिकेशन मिलता है कि हमारा व्यू क्या है मार्केट पे, हमारा वो नंबर क्या कह रहा है। सो ये वाइट लाइन है, वहाँ पे 14 to 24% रिटर्न निकलेगा 2 साल में, एब्सोल्यूट, नॉट CAGR। एंड इफ यू वर टू लुक एट द पिंक बार्स, जहाँ पे आपका FD अच्छा है इक्विटी से, क्योंकि लेस देन 14% रिटर्न निकलेगा 2 साल में। सितंबर 2024 मार्केट पीक्ड, क्या बैंड है? लेस देन 14% रिटर्न। हमने इंटरनेशनल लिख के दिया था कि मार्केट में से यू विल मेक एब्सोल्यूट रिटर्न ऑफ 11% इन 2 years। एंड लुक एट वेयर मार्केट्स आर फ्रॉम सितंबर 24 टिल नाउ। है कोई रिटर्न मार्केट में? नेगेटिव है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर भी जाते हैं और 10% रिटर्न भी निकलता है तो वी विल बी एक्यूरेट। करंटली नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल विल बी, अभी क्या लग रहा है, राइट? वी आर इन द डार्क ग्रीन जोन। डार्क ग्रीन कौन सा बैंड है? गुड टाइम, बैड टाइम, गुड रिटर्न, बैड रिटर्न, एक्सीलेंट।
It was more excellent a week before. I mean, we are still not out of that. अभी भी आ सकता है, मगर still it's not a bad time to invest in markets. So ये कैसे होता है? Anyone knows ये कैसे होता है? How do we know with this kind of accuracy कि अगले 2 साल का रिटर्न कैसे निकलेगा? रॉकेट साइंस है क्या? Is it a rocket science? नहीं. वो कैसे होता है कि हर स्टॉक जो हमारे पोर्टफोलियो में है, हमें उनका 2 साल के बाद का सेल या टारगेट प्राइस मालूम है. सो अगर मैं पूरे पोर्टफोलियो का करंट प्राइस टू सेल प्राइस और टारगेट प्राइस इज द अपसाइड ऑन दैट स्टॉक, कितना रिटर्न निकलेगा उस स्टॉक में से. अगर पोर्टफोलियो का वेटेड एवरेज कर लूँ, टोटल कर लूँ, तो मुझे मिलेगा पोर्टफोलियो का अपसाइड. तो वो ऑरेंज लाइन जो हमने देखा वो पोर्टफोलियो का अपसाइड है 2 साल के बाद का. अभी आप पूछेंगे कि 2 साल बाद क्यों, 1 साल के बाद क्यों नहीं और 5 साल के बाद क्यों नहीं. 1 साल बहुत छोटा टाइम फ्रेम है क्योंकि कुछ भी हो सकता है. जैसे वॉर, नो वन प्रेडिक्टेड वॉर, हो गया राइट. बट 2 साल में फेयरली ये सब अबनॉर्मलिटीज नॉर्मलाइज हो जाता है. 5 साल क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी के नंबर्स पे उतनी विजिबिलिटी नहीं होती है. हम मॉडल बनाते हैं 5 साल का, बाय सेल डिसीजन 2 साल पे होता है. ये नंबर्स पे जो पकड़ होनी चाहिए, आपको विजिबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट ओनली कम्स विद 2 ईयर नंबर्स. सो ये सिंपल फॉर्मूला है हमारा. कंपनी अगर अच्छी नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, गवर्नेंस अच्छा नहीं है, तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कितनी भी बड़ी कंपनी हो. वो टाइट फिट इसलिए है क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में ना ही सत्यम था, ना ही ILFS था, ना ही येस बैंक था. ये सारे स्टॉक्स नहीं थे, ना जेट एयरवेज था, ना DHFL था. उस वजह से हमने कभी वो मिसहैप नहीं देखा पोर्टफोलियो में, बिकॉज ऑफ दिस गवर्नेंस. कंपनी के गवर्नेंस अच्छे नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे. उसलिए जो हमने प्रेडिक्ट किया वो सही आया है. अगर ये कोई कंपनी होती तो इतना सही प्रेडिक्शन नहीं आता. सेकेंड इज लिक्विडिटी. जो भी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते हैं उनके वॉल्यूम होने चाहिए 8.5-9 करोड़ पर डे. वैसी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं. और इस ऐसा नहीं कि उस वजह से सारी लार्ज कैप कंपनीज ही आएगी, मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज के भी वॉल्यूम होते हैं, ताकि हम जब भी इन्वेस्ट करें और जब भी हम एग्जिट करें उसके प्राइसेस पे इम्पैक्ट ना हो. इसके लिए वो लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप प्रॉफिट्स जो पेपर पे देख रहे हैं, जब भी आप कन्वर्ट करने जाएं, you get that realized profits. और वैल्यूएशन, आप क्या प्राइस पे खरीद रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हमारा सिंपल फॉर्मूला है मॉडल ऑफ 75. जो भी कंपनी हमें लगता है कि 2 साल के बाद 100 रुपया उसका वर्थ है, उसका वैल्यू 100 रुपया होना चाहिए, हम उसे खरीदते हैं 75 और लोअर. जब 75 रुपीज़ पे खरीदते हैं और उसमें 25 रुपया का प्रॉफिट होता है तो 33% रिटर्न निकलता है. तो जब तक कोई भी कंपनी ये 33% रिटर्न मिनिमम नहीं देगी 2 साल में, हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते. सो मिनिमम रिटर्न और ये डिसिप्लिन की वजह से हमने जो देखा कि हमने क्या प्रेडिक्ट किया और क्या हमें रिटर्न्स मिले, इट्स द सेम. और कितनी बार सही रहे, लाइक हमने जो देखा 80% वॉज द मैक्स. We are at that 80%. जब भी हमने कहा कि रिटर्न्स आएंगे 30% से ज़्यादा, तो हमारा हिट रेट था 77%. जब भी हमने कहा कि 30% से कम रिटर्न आएंगे, तभी हमारा स्ट्राइक रेट था 78%. सो बोथ मार्केट्स में वी हैव बीन एक्यूरेट अबाउट नियरली 80% ऑफ द टाइम. क्या ये ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद आपको लगता है कि ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हर फंड मैनेजर का होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेलिंग यू कि क्या होगा इन द फ्यूचर? और जब भी आप ये सब सुनने के बाद आप क्या करेंगे, जाके देखेंगे क्वांटम वैल्यू फंड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. राइट? प्रूफ इज इन द पुडिंग कि ये तो अच्छा बोल रहे हैं मगर एक्चुअली क्या डिलीवर किया है.
सो अगर आप वैल्यू फंड के साथ कंपेयर करेंगे, सो इट इज़ अ मिक्स्ड बास्केट, जहाँ पे काफ़ी सारे फंड मिड कैप वाले हैं, काफ़ी सारे फंड स्मॉल कैप वाले हैं। हमारे लिक्विडिटी की वजह से वी वर क्लोज टू लार्ज कैप टू अ लार्ज एक्सटेंट। एंड सेकेंड इज, जो वैल्यू का डेफिनेशन है वो कहीं डिफाइन नहीं है कि क्या वैल्यू देख रहे हैं। हमारे हिसाब से वैल्यू है कि 100 का माल 75 में लिया, 100 का अगर वैल्यू है 2 साल के बाद, उसको 75 के नीचे, वो हमारा वैल्यू का डेफिनेशन है। दूसरों के अलग होंगे, 100 का अगर 90 में मिलता है तो उनके हिसाब से वैल्यू है। सो वैल्यू एज अ कैटेगरी बहुत मिक्स्ड है। इस वजह से आप उस पे जाइए कि हम क्या बताते हैं और हम क्या रिटर्न डिलीवर करते हैं। सो ओवर टाइम इफ यू सी, जो भी वैल्यू कैटेगरी है उनमें मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन था 40% के आसपास, और हमारा मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन था 15 से 20%। तो अगर लार्ज कैप जैसे फंड को आप मिड एंड स्मॉल कैप जैसे फंड के साथ कंपेयर करेंगे तो इट्स नॉट अ राइट कंपैरिजन। सो आई थिंक यू शुड ट्रीट इट लाइक हम जो कहते हैं उसके साथ आप कंपेयर कीजिए कि चिराग ने बोला कि ये रिटर्न निकलेगा और क्या रिटर्न डिलीवर किया है। और जो बोलते हैं ना कि सबको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, और हमारे इक्विटी मार्केट्स में इट्स इजी टू प्रूव बाय नंबर्स। तो अगर देखें तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है ओवर टाइम, वैल्यू फंड क्या होना चाहिए, उसका पीई मार्केट के पीई से कम होना चाहिए, उसका डिविडेंड यील्ड हमेशा ज़्यादा होगा। तो डिविडेंड यील्ड देखिए, हमारे ग्रीन लाइन जो मार्केट से हमेशा ऊपर था डिविडेंड यील्ड, और अगर पी देखिए तो हमेशा मार्केट से कम पी था। तो वैल्यूएशन हमारे फंड का हमेशा सस्ता मिलेगा एज कंपेयर टू द मार्केट। एंड ओवर टाइम जब भी ड्रॉडाउन्स आएंगे, हमारे फंड में ड्रॉडाउन्स कम आए हैं। जब भी मार्केट गिरता है, बिकॉज वी आर वैल्यू, हमारा फंड कम गिरता है। स्मॉल कैप किसको अट्रैक्टिव लगता है और किसको महंगा लगता है आज? क्या स्मॉल कैप होना चाहिए पोर्टफोलियोज में? लास्ट 1.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी ओके, कन्विक्शन हाई है स्मॉल कैप पे। तो स्मॉल कैप में आपको कोई रिस्क लगता है क्या? एनीवन? क्या रिस्क है स्मॉल कैप में? मैनेजमेंट रिस्क, वैल्यूएशन रिस्क, स्टॉक्स का लिक्विडिटी। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑल आर राइट, ये सब सारे रिस्क है स्मॉल कैप में। मगर एक चीज़ जो आपको परखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कैप फंड, क्या वो जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हो स्मॉल कैप फंड का, क्या आज भी वही फंड है कि अलग फंड है? जो आपको लग रहा है कि उसने, ये फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है, उसके बाद आज वो फंड वही फंड है जिसने डिलीवर किया है कि आज चेंज हो गया है? चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया है? पोर्टफोलियो चेंज हो गया है। सो बिगेस्ट इश्यू इज, जो पहले इट वाज अ गुड फंड ऑफ 50, 60, 70 स्टॉक्स, आज उनमें 100, 150, 200 कंपनीज हो गई हैं। तो आपको लगता है कि 60, 70, 80 स्टॉक वाला फंड और 150, 200 स्टॉक वाला फंड सिमिलर रिटर्न देगा? पोटेंशियल चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है। कौन सा फंड अच्छा डिलीवर करेगा, 150, 200 स्टॉक वाला या 60, 70 स्टॉक वाला? सॉरी, 60, 70। क्यों? क्वालिटी, कन्विक्शन, एब्सोल्युटली राइट। बिकॉज जो 150, 200 है वो तो इंडेक्स भी है। 150, 200 स्टॉक ही लेना है तो फंड मैनेजर का काम क्या? सो what was a fund with good stocks, good number of stocks, वो अब कम हो गए,
So stocks with less than 1% weight, 85, 50, 64, 97, 71. अगर फंड मैनेजर 1% वेट भी नहीं रख रहा है पोर्टफोलियो में, से आधा टका रख रहा है, वो स्टॉक डबल भी होगा तो कितना रिटर्न देगा? आधा टका। आधा टका डबल हुआ तो आधा टका रिटर्न मिलेगा फंड को। और कितने स्टॉक्स डबल होंगे? वेरी फ्यू। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस। सेकेंड इज, एक स्मॉल कैप फंड है तो उसका कन्विक्शन स्टॉक्स, जो टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं, वो तो स्मॉल कैप होने चाहिए। स्मॉल कैप फंड में टॉप 10 स्टॉक्स ज़्यादातर स्मॉल कैप होने चाहिए कि नहीं? यस। तो अगर देखें तो टॉप 10 में लार्ज एंड मिड का कितना प्रोपोर्शन है? 17, 39, 51, हमारे फंड में 9%। सो ओवरऑल जो कन्विक्शन होता है ये भी अभी बेटर हुआ है बिकॉज स्मॉल कैप के वैल्यूशंस गिरे हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी मिला है, इसके लिए चेंज हुआ है। अगर आप एक महीने पहले देखते हैं यही चीज़ तो आई थिंक ये सब नंबर्स काफ़ी ज़्यादा थे, 50, 60, 70%। तो अगर स्मॉल कैप फंड मैनेजर को आप स्मॉल कैप स्टॉक्स लेने को बाय करने को बोल रहे हैं और वो लार्ज कैप स्टॉक्स लेके बैठ रहे हैं, इज दैट जस्टिस? नो। सेकेंड, थर्ड, जो लिक्विडिटी का चीज़ बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका फंड साइज इतना बड़ा हो गया है कि आपका छोटा सा होल्डिंग, आधा टका होल्डिंग, इज बिकमिंग 8-9% ऑफ द कंपनी, तो वो रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल 0.96% ऑफ द पोर्टफोलियो इज 9.3% होल्डिंग ऑफ द कंपनी, और वो स्टॉक ऑलरेडी इलिक्विड है, उसे 400 दिन लगेंगे लिक्विडेट करने को। इमेजिन अ सिचुएशन वेयर अ लार्ज ओनर ऑफ द कंपनी इज ट्राइंग टू सेल ए स्टॉक विच इज ऑलरेडी लिक्विड। क्या होगा स्टॉक प्राइसेस का? स्टॉक विल फॉल। दैट इज द रिस्क दैट यू सी इन स्मॉल कैप्स। So you have to look at funds, small cap fund. Small cap is a great category. जो उसमें स्टॉक्स है वो दूसरे सेगमेंट्स में नहीं है। मिड कैप, लार्ज कैप्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स नहीं हैं वो सेगमेंट के, वो सेक्टर के। इस वजह से स्मॉल कैप एलोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ क्लाइंट्स पोर्टफोलियो। मगर एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कंसिडरेट टू दीज रिस्क। सो आवर स्मॉल कैप फंड, दूसरा चीज किसी ने बोला वैल्यूएशन, राइट? वैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप में, In बिकॉज our SID 60 stock we have mentioned. या सो ये जो था नंबर ऑफ स्टॉक्स, आज हमारे में 55 है बिकॉज देर आर सम स्टॉक्स विच आर गोइंग इन एंड आउट। इसके लिए थोड़ा सा चर्न में थोड़ा सा स्टॉक लेवल ऊपर है, बट अदरवाइज विल बी 48-50 स्टॉक्स। In our scheme information document, we have given a commitment that our number of stocks will never go above 60 stocks. So ये जो dilution देख रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में आपको कभी नहीं मिलेगा। You will always see a good, high conviction, high quality portfolio of 60 stocks. Next, valuation. So valuation is very very important. आज इंडेक्स PE 27 टाइम है। अनूप जी ने बताया कि 10 साल के मीडियन से तो कम है, राइट? बट स्टिल इट इज एट 27 टाइम्स, विच इज नॉट चीप। ऑफ कोर्स इट हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम वेयर इट वाज, 35 टाइम था, उसका 27 टाइम हो गया है, बट स्टिल इट इज एक्सपेंसिव। फॉर अ 15% growth, earnings growth, you are paying 27 times. You are paying more than 1.26 times for 1 rupee worth, right? Our fund is at 18 times, 18.7, with the earnings growth of 24%. So for 1% of growth or 1 point of growth, you are paying 0.54. Is it good or bad?
So these risks in small cap are very real. Risk of liquidity, risk of valuation, वो सब ध्यान में रख के आप इन्वेस्ट करेंगे, you will not be disappointed. So this is how we run the fund. It is pure bottom up. Active research लगता है. You have to get on the ground. Sleeves fold करके companies के सामने बैठ के आपको समझना पड़ता है उनका धंधा. And then you build your conviction on those stocks. So it's not easy. Universe is large, but you have to do the hard work to find the good stocks. So we have a large coverage. We cover about 250 stocks in our small caps world. We will only buy when it is having a good upside. अगर 30% से ज़्यादा upside नहीं है कोई स्टॉक में, हम लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं. और उसमें किसी ने बोला कि मैनेजमेंट गवर्नेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. सो वी रन टू थिंग्स. वन इज़ आवर इंटेग्रिटी चेक, जो 200 पैरामीटर में हर कंपनी को टेस्ट करता है कि हाउ दे आर. एंड सेकेंड, वी डू फोरेंसिक एनालिसिस. फोरेंसिक में अगर कोई भी अकाउंटिंग में वो कुछ कर रहे हैं, they are doing crafting the numbers, then we will know. क्योंकि काफ़ी स्मॉलर कंपनीज है, उनके हिस्ट्री कम है, वो मैनेजमेंट क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम. राइट. सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन द स्मॉल कैप स्पेस. Coming to equities, to sum it up, we are very very positive on equities from a 2-year perspective. तो अगर आपके इन्वेस्टर्स अंडर एलोकेटेड है, प्लीज़ उनका एलोकेशन बढ़ाइए एक्विटीज़ में. दिस इज़ अ गुड टाइम. अगर मार्केट डिप आता है तो डोंट बी स्केर्ड. ग्लोबल नैरेटिव्स हमने बहुत देखे हैं ओवर टाइम. ये वॉर्स, जियोपॉलिटिक्स, ये हमेशा रहा है. बट इंडियन मार्केट्स हैव डिलीवर्ड 15% रिटर्न अगर इफ़ यू हैव स्टार्टेड एट द राइट पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन. Right? So I think this is the time you can make decent amount of returns from Indian equities if you have a 2-year, 3-year view from markets. I mean, let's first cut the outlook. My outlook is very positive on gold. So to explain it very simply, क्या हो रहा है वर्ल्ड में आज. अगर कोई कंपनी है जो अगर 130 रुपया इन्वेस्ट करती है और 100 रुपये का रेवेन्यू लाती है, क्या वो कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे? 130 रुपया इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में और 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करते हैं हर साल यही होता है. 130 रुपया आप डाल रहे हो, 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करते हैं. तो आप प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू का बात कर रहा हूँ, टॉप लाइन. 130 रुपया जा रहा है, 100 रुपया रेवेन्यू में आ रहा है. क्या ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे? क्यों? तो चलेगा नहीं ना ज़्यादा. ये करते रहेंगे, कब तक डालेंगे पैसे? सो वही हालत आज, वो कंपनी जैसी हालत आज यूएस इकोनॉमी की है. पिछले 15 साल से या 20 साल से वो लोग 130 रुपया डाल रहे हैं इकोनॉमी में और 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. जीडीपी जनरेट हो, जैसे हम जीडीपी बोलते हैं. कंट्री के लिए जीडीपी होता है, कंपनी के लिए रेवेन्यू होता है. बराबर. सो वो हालत आज यूएस इकोनॉमी का है. क्या वो लंबा चल सकता है? नहीं चल सकता है. राइट. अब तक क्यों चला फिर? 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है. अब तक इसलिए चला क्योंकि वो वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी है. आज सारा ट्रेड जो होता है यूएस डॉलर में होता है. लोगों के दूसरे कंट्री के पैसे यूएस के पास है, इस वजह से वो चल रहा है. मगर अगर आज यूएस इकोनॉमी की हालत ऐसी है तो कोई दूसरे इकोनॉमी के तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? दूसरे करेंसी में क्यों नहीं जा रहे हैं? दैट इज बिकॉज देयर इज नो ऑल्टरनेटिव. सो वी कम टू दिस, बट जैसे गोल्ड का प्राइस का व्यू कर रहे हैं. सो ये गोल्ड प्राइसेस है 1971 से. 1971 इसलिए क्योंकि उसके पहले गोल्ड का बैकिंग करेंसी पे था.
कोई भी करेंसी बनानी है तो उसके लिए गोल्ड चाहिए था। उसके बाद वो रिलेशनशिप निकाल दिया उन्होंने। उसके बाद के गोल्ड प्राइसेस ये हैं। सो गोल्ड जो $5,500 पे जाके अभी $4,800-900 पे है, क्या वो पीक है कि और ऊपर जा सकता है? जा सकता है। आई मीन यू हैव टू बी माइंडफुल। जब भी वो $850 गया था वहाँ पे, उसके बाद $250 तक गया था। यहाँ पे जब भी $1,900 गया, उसके बाद गया था $1,100 तक। अभी गया है $5,500 और ऑलरेडी $4,100 तक जाके आया है। सो ये पिछले बुल मार्केट्स है, उसमें कैसे किया था। 1971 to 74 नियरली 5 times इंक्रीज हुआ था। 78 to 80 अगेन नियरली 4.5 times हुआ था। 2000 to 2012 it went up by 6 times और ये रैली में it has gone up by less than 4 times, 3.6 times। सो पिछले बुल मार्केट्स के हिसाब से अभी तक गोल्ड कम अप्रिशिएट हुआ है इन द एंटायर साइकिल। ये जो हम प्रॉब्लम की बात करते हैं यूएस इकोनॉमी की, क्योंकि वो हर टाइम ज़्यादा पैसे इकोनॉमी में डाल रहे हैं और उनके पास उतने पैसे हैं नहीं, तो वो डेफिसिट रन कर रहे हैं। सो ओवरऑल कंटिन्यूसली उनके डेफिसिट्स ऑफकोर्स कोविड में बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे, बट अदरवाइज दे हैव बीन रनिंग 5 to 6% डेफिसिट एवरी ईयर। और वो ज़्यादा डेफिसिट रन करते हैं मतलब उनको वो पैसे तो चाहिए, पैसे बोरो करते हैं, तो उनका जो डेट है, डेट बढ़ते जा रहा है उसकी वजह से। सो ओवर टाइम इफ यू लुक एट देयर डेट इज नाउ क्लोज टू 125% ऑफ जीडीपी। 125% ऑफ जीडीपी उनका डेट है। नियरली 38-40 ट्रिलियन इज द डेट दैट दे हैव। और वो डेट बढ़ते जा रहा है क्योंकि उनके इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो डेट के ऊपर, वो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। तो एक फर्ग्यूसन लॉ बोला जाता है, कोई भी इकोनॉमी की जब भी इंटरेस्ट पेमेंट उसके डिफेंस स्पेंडिंग से ज़्यादा हो जाती है, वो इकोनॉमी डिक्लाइन में आ जाता है। और यूएस का लास्ट ईयर ये हुआ है, उनके इंटरेस्ट पेमेंट उनके डिफेंस स्पेंडिंग से बढ़ गए हैं। सो आई थिंक ओवर टाइम जैसे इंटरेस्ट रेट्स अगर ऊपर रहते हैं, ये इंटरेस्ट बर्डन और भी बढ़ते जाएगा और उनकी इकोनॉमी को और वीक करते जाएगा। ये एक बहुत अच्छा स्टेटिस्टिक है जो कहता है कि एवरी 100 years जो भी रिजर्व करेंसी होती है वो चेंज हो जाती है। ऑफ कोर्स 100 से थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट बॉल पार्क नंबर्स 100 years। सो यूएस को अभी 105 साल हुए हैं एज अ रिजर्व करेंसी। तो एक तो उनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, जो फर्ग्यूसन लॉ बताता है कि उनकी इकोनॉमी शायद डिक्लाइन में होगी, ये जो बताता है कि रिजर्व करेंसी 100 साल रहते हैं, वो भी कंप्लीट कर दिया है। सो अगर डॉलर एक ऑल्टरनेटिव नहीं होता है तो कौन है ऑल्टरनेटिव? यूरो के पास स्ट्रेंथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है। जापान के पास भी ग्रोथ नहीं है। ओवर लास्ट 30 years they have not shown any growth. So there is no other economy. So लोग बोलेंगे चाइना is emerging as a super power. चाइना पे किसी को भरोसा है यहाँ पे? नहीं। सो वर्ल्ड को भी भरोसा नहीं है चाइना पे, तो चाइना के पास वो नहीं जा सकता है। तो देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव। तो अभी जैसे यूएस अपनी मनमानी कर रहा है, ट्रेड वॉर कर रहा है, अटैक कर रहा है दूसरे कंट्रीज़ को, किसी के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स को उठा के लेके जा रहा है। सो ऐसे मामले, ऐसे उसमें सिचुएशन में यूएस डॉलर पे लोगों का भरोसा कम हो रहा है और ये सब इश्यूज तो है ही बैकग्राउंड में। सो ओवर थिंग पीपल वांट टू कम आउट ऑफ डॉलर। इफ यू कम आउट ऑफ डॉलर तो कहाँ जाए? गोल्ड। सो ये चार्ट दिखा रहा है कि जैसे सेंट्रल बैंक्स यूएस का होल्डिंग कम कर रहे हैं, गोल्ड का होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। क्लियर स्टेटिस्टिक, क्लियर डेटा टू शोकेस दैट। और अभी भी बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स है
इंडिया, चाइना, उनके होल्डिंग्स ओवरऑल बहुत कम है एज कम्पेयर टू यूएस, जर्मनी, राइट। वो सब बड़े डेवलप्ड नेशन से गोल्ड होल्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ रिजर्व अभी भी कम है। सो दीज कंट्रीज विल कंटिन्यू टू अक्यूमुलेट गोल्ड एंड नॉट डॉलर। और ये चार्ट है जहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड था, गोल्ड एक करेंसी था। सो जैसे गोल्ड एक करेंसी 1900s में था, ओवर टाइम स्पेशली 1971 के बाद कम होते गया, एंड नाउ अगेन इट इज स्टार्टिंग टू इंक्रीज। तो अगर ये ट्रेंड रहता है, लोग गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ग्लोबली, तो आई थिंक ये प्रोपोर्शन बढ़ते रहेगा। और अगर 1% डॉलर से शिफ्ट होता है, उसका टोटल 530 टन डिमांड बढ़ेगा गोल्ड का। सिर्फ 1% डॉलर से शिफ्ट होता है गोल्ड में, उसका इम्पैक्ट 530 टन, 500 टन के आसपास का डिमांड गोल्ड का बढ़ेगा। लास्ट 3 साल में, 4 साल में सेंट्रल बैंक्स ने 3830 टन गोल्ड खरीदा है। और जैसे हमने ये चार्ट देखा कि गोल्ड एक करेंसी था और अभी वापस उस दौर में जा रहा है, तो गोल्ड की वैल्यू पैसे के हिसाब से बढ़नी चाहिए, राइट। सो गोल्ड अगर पैसे की मामले में अगर आप देखें तो 1900s में इट वाज वेरी क्लोज टू 100% लेवल्स, राइट, फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद जैसे 1971 से देखें तो आफ्टर दैट रैली गोल्ड का इंपॉर्टेंस कम हो गया था, एंड नाउ इट इज स्टार्टिंग टू राइज अगेन। तो अगर पैसे 25% या अभी 20% एलोकेशन पैसे का बैकिंग गोल्ड से है, जितना पैसा है गोल्ड कितना है उनके पास 20%। अगर ये 50% या 40 या 100% की तरफ जाता है तो यहाँ से बहुत अपसाइड है गोल्ड में, जैसे हमने 1980s में देखा था। इफ इट हैज टू गो अप टूवर्ड्स इवन 40%, देयर इज अ बिग अपसाइड इन गोल्ड। अगर पैसा जो भी सेंट्रल बैंक्स बनाते हैं वो अगर गोल्ड से बैकिंग चालू हो जाए, या तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें या तो फिर जितना कितना पैसा है उसके हिसाब से गोल्ड खरीदे, तो गोल्ड प्राइसेस में अपसाइड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ से। सो क्या गोल्ड प्राइसेस हो सकते हैं? इट विल डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। डॉलर गोल्ड प्राइस क्या है, रुपये का वैल्यू क्या है, राइट। तो अभी गोल्ड प्राइस करीब करीब 1.5 लाख के आसपास है। क्या 2 लाख जाएंगे, क्या 3 लाख जाएंगे? इट डिपेंड्स ऑन क्या गोल्ड प्राइस है। तो अगर $6000 गोल्ड प्राइस हो जाता है नेक्स्ट ईयर एंड रुपी 95 होता है, तो हमें 2 लाख रुपए का प्राइस मिलेगा, विच प्रोबेबली इज लाइकली टू हैपन, क्योंकि फैक्टर्स जिस हिसाब से है, आई थिंक देयर कुड बी अ इंक्रीज इन डॉलर वैल्यू, और यहाँ से रुपी अप्रिसिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं लगते हमें। तो अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कंफ्यूज्ड, इक्विटी करें गोल्ड करें? इक्विटी में भी अपसाइड अच्छा बोल रहे हैं, गोल्ड में भी अपसाइड अच्छा बोल रहे हैं, व्हाट शुड वी बाय? आई मीन एलोकेशन करके रखना चाहिए। और क्यों एलोकेशन करना चाहिए? और 2-3% नहीं, एटलीस्ट 15% एलोकेशन टू गोल्ड। ये देखिए गोल्ड के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स 2003 से अब तक के रिटर्न्स है। सो गोल्ड ने दिया है 14% रिटर्न, इक्विटी ने दिया है 12.5% रिटर्न। तो इंडिया में हाउसवाइफ्स अच्छे फंड मैनेजर हैं, राइट। फायदा किधर होता है? जब भी इक्विटीज में फॉल आया तो इक्विटीज में ड्रॉडाउन थे अराउंड 56%, और अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होता तो आपका वही ड्रॉडाउन 21% हो जाता है। जब 2008 में मार्केट्स गिरे थे तभी 56% का फॉल देखा था इक्विटीज़ में।
अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होता तो आपका ड्रॉडाउन कितना होता? 21%. इन्वेस्टर्स 21%, ओके, दे कैन अब्जॉर्ब. 56% कैन दे अब्जॉर्ब? दे कैन नॉट. इसलिए गोल्ड चाहिए आपके पोर्टफोलियो में. और लोग बोलते हैं कि इक्विटी डेट तो है ना, डेट स्टेबलाइज करता है पोर्टफोलियोज को, गोल्ड का क्या ज़रूरत है? मगर गोल्ड एक डेट खाली स्टेबलाइज करता है, गोल्ड उल्टा चलता है. इक्विटीज नीचे जाते हैं तो गोल्ड ऊपर जाता है. सो डेट से बेटर गोल्ड है पोर्टफोलियोज में. तो अगर आप हमसे पूछे तो कितना पैसा इक्विटी में होना चाहिए, कितना डेट में होना चाहिए, तो कितना गोल्ड में होना चाहिए? आई थिंक डेट में सिर्फ इमरजेंसी पैसा होना चाहिए. आपको 1 साल का इमरजेंसी पैसा रखना है, 2 साल 3 साल, वो आप डिसाइड करें. उसके बाद जो भी पैसे बचते हैं 80% इक्विटी 20% गोल्ड. हम इसे कहते हैं 12-20-80. एक सिंपल फॉर्मूला है. 12 महीने के पैसे सेफ, 20% गोल्ड में, 80% इक्विटी में. ये पोर्टफोलियो हमेशा चलता है, बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, ये पोर्टफोलियो, ये फॉर्मूला अच्छा चलता है. सो ओवरऑल सिर्फ आपका इक्विटी और डेट का पोर्टफोलियो होता ना तो भी बहुत ज़्यादा गिरा है एज कंपेयर टू गोल्ड एडिशन इन द पोर्टफोलियो. एंड फिजिकल ना करें. फिजिकल ओनली आपको जितना ज़रूरत है फॉर कंजम्पशन, जितना पहनना है उतना ही ले. इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. एक थंब रूल होता है कि 3 बार आपने ज्वेलरी एक्सचेंज किया तो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है. सो ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट ना करें. ज्वेलरी ओनली फॉर कंजम्पशन. और इन्वेस्टमेंट के लिए यू हैव टू लुक एट ETF एंड फंड्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस? हम क्या अलग करते हैं? गोल्ड ETF, गोल्ड फंड तो एक कमोडिटी है, राइट? आप सोना लेके रख देते हैं. बट वी आज के तौर में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर फंड विच इज़ 100% फिजिकली बैक्ड. हमारे फंड में कभी भी डेरिवेटिव्स, पेपर गोल्ड नहीं होगा. इट विल बी ऑलवेज 100% फिजिकल गोल्ड होल्डिंग. दूसरा चीज़ क्या करते हैं? गोल्ड, आप बोलेंगे आप तो ऑफिस में बैठते हो, गोल्ड तो वॉल्ट में है, वो सही है कि नहीं है? इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. तो व्हाट वी डू, हमारा टीम एवरी मंथ जाता है वॉल्ट में टू चेक ईच एंड एवरी गोल्ड बार. दूसरा चीज़, आपको दिखा दिया गोल्ड, क्या वो सही गोल्ड है कि टंगस्टन है, कॉपर है, क्या है? आपको कैसे मालूम पड़े? तो वी आर द ओनली AMC इन इंडिया that does purity check of all the gold that we have for the fund once every year. थर्ड पार्टी प्रोफेशनल एजेंसी हायर करते हैं जो हमारे वॉल्ट में आके प्योरिटी चेक करते हैं ईच एंड एवरी गोल्ड बार का. और उसका प्योरिटी सर्टिफिकेट हमारे वेबसाइट पे है, हमारे एनुअल रिपोर्ट में है. वो ज़रूरी है कि नहीं है? इज दैट अ इम्पॉर्टेंट रिस्क? There is a question. Should we take questions now or? Okay. I'm just finishing. We can take it after that. So, what we have done as an initiative is we call it Compass, starting with a Q. Every month कोई भी अच्छे टॉपिक पे जो भी रेलेवेंट हो, जैसे ट्रेड वॉर्स था या अभी ईरान वॉर है, सो जो भी वॉर या रिलेटेड या जो भी टॉपिकल चीज़ें हैं उसके ऊपर हम एक वेबिनार करते हैं एवरी मंथ, डन बाय द फंड मैनेजर्स एट क्वांटम. एंड वहाँ पे वी ट्राई टू ऐड मोर वैल्यू बिकॉज यू नो ऐसे टाइम पे पैनिक बहुत होता है. हाउ डू यू गेट द राइट डेटा, राइट इन्फॉर्मेशन, ताकि आप इन्वेस्टर के डिसीजंस ले पाएँ एंड इन्वेस्ट इन द राइट वे. सो इफ़ यू हैव मिस्ड लास्ट वीक्स फॉल, प्रोबेबली इट मे नॉट कम. So if you had that information, एक वीक पहले ही हमने कंपस किया था and we had showcased this conviction and we had said that अगर आपको लगता है कि 2 साल के बाद रिटर्न से बेस केस जो भी है उससे स्ट्रेस टेस्ट में आपके कितने रिटर्न्स कम हो जाएंगे. तो अगर आप मानते हैं कि 2 साल में 50% रिटर्न निकलेगा, तो अगर वो स्ट्रेस करते हैं उसके बाद भी आपके रिटर्न से इट वुड हैव गॉन डाउन बाय
35%. So it would have become 30% from 50%. Still that 30% in a worst case scenario was a very good return, right? So वैसे information हम आपको देते हैं which is very useful for you all. So we will share these links. If you all want to attend every month, please do so. Please ask us questions. And this is an initiative that we have to connect with you all. So with that, I come to the end of my presentation, but great times to invest. Don't fear. Go ahead with your conviction. Invest in equity and as much as in gold as well, right? So with that, I end my presentation. Over to you. Thank you.